Students, today we are going to read chapter number 2 of our English literature book on being Sarah. Student, it is a story about a young girl Sarah who is suffering from cerebral palsy. It is a medical situation in which a person is confined to a wheelchair and he is unable to communicate properly. Actually, he is unable to communicate totally. Sarah is also suffering from this disease, and whenever she tried to talk, only the sound "oh" come out from her mouth. The sound had meant nothing to others, but for her they had been the numerous questions. Students, she always been much. She had there has always been so much she want to communicate, but like in the bottleneck, the words remain stuck to her brain due to the lack of escape. It means she was curious to talk. She wanted to ask questions. She wanted to know the world. She wanted to talk about many things, but she was unable to express her thoughts. Okay, so she gets upset. Sometimes she started crying when she was a child. But once she started going to school, it was a beginning of a new chapter of her life. She started learning with the help of symbols, which is called village symbols. Okay, so then she began to feel normal. She get encouraged with the sense of purpose. She began to think that one day even she will be going to be somebody. Her parents supported her, always provided her whatever she asked for. Okay, her mother was a best mother for her. She always supported her. She always told her the story that she wanted to know, that how she was suffering from this disease. She told her that perhaps before her birth or during her birth there was some cause due to which her brain could not develop, and that's why the brain cannot give proper message to the muscles. That's why the muscles are unable to perform their work properly. That's why she is unable to talk and unable to walk. She was confined to a wheelchair. After listening a story, the Sarah want to listen the story again and again, so that she can get courage to face the reality. But she kept on moving with joy, and she has a keenness to learn. She was curious to learn, and she was very smart girl. This is the story. This is how the story moves on. ओके स्टूडेंट, ये स्टोरी एक यंग गर्ल सारा के बारे में है जो सेरेब्रल पैल्सी से सफ़र करती है। ये कंडीशन होती है जहाँ पर पर्सन जो है व्हील चेयर पर हो जाता है और वो चल नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। ठीक है, और ये कंडीशन जो ऐसी कंडीशन है इसमें जो माइंड है वो प्रॉपर मैसेज जो है मसल्स को नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से पर्सन की बोलने की और चलने की, प्रॉपर वॉक करने की जो है कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, जब भी वो बोलने की कोशिश करती है, जब वो छोटी थी, वो रिमेंबर कर रही है पुराना, तो हमेशा उसके माइंड से सिर्फ आ वर्ड, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसके माउथ से वर्ड निकलता था आ। इस साउंड का दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। वो दूसरों से खुद से पूछती रहती थी कि वो किस तरह से दूसरों से सवाल करे और वो कैसे अपने सवालों के जवाब उसे मिलेंगे। हमेशा उसे बहुत कुछ बोलना होता था, लेकिन उसके जो वर्ड्स हैं उसके गले में आकर रुक जाया करते थे। ठीक है, बहुत कोशिश करती थी, लास्ट में आकर वो रोने लगती थी, उसके हाथ पैर कांपने लगते थे और रोने लगती थी। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इवन हर पेरेंट्स भी, कि वो कभी नॉर्मल लाइफ जी भी पाएगी। ठीक है, लेकिन हमेशा वो कोशिश करती रहती थी। मिसिस ब्रैडी उनके यहाँ आती थी डेली उसे एक्सरसाइज कराने के लिए। ठीक है, उस एक्सरसाइज के टाइम पे वो हमेशा उससे चेयर अप करने की कोशिश करती रहती थी, उससे अदर चिल्ड्रंस के बारे में बताती थी, वो भी सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन सारा को लगता था कि ओनली वही है इस वर्ल्ड में जिसे ये प्रॉब्लम है, और बाकी कोई ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जिसे गॉड ने ये तकलीफ़ दी हो। बट वन सारा स्टार्टेड गोइंग फॉर स्कूल, इट वॉज़ अ न्यू बिगनिंग ऑफ हर लाइफ। लेकिन जैसे ही उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, उसके लिए एक नया चैप्टर था, उसकी लाइफ की एक नई शुरुआत थी। उसे सिंबल्स टीचर ने उसे बताया कि जैसे हमारी टॉकिंग वर्क करती है, वैसे ही हम सिंबल वर्क करते हैं। हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने क्वेश्चन सब उनके आंसर विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ले सकते हैं। ठीक है, सारा जो थी, अब उसे हालांकि मालूम था कि कभी भी वो व्हील चेयर से नहीं उठ पाएगी। ऐसा नहीं कि अभी हमेशा के लिए वो व्हील चेयर को कभी टाटा बाय बाय कह देगी इवन, और कभी भी वो
हमेशा के लिए बोल सकती है, लेकिन उसे अब पता था कि उसकी जो लाइफ है वो एक नॉर्मल लोगों की तरह चलने लगेगी, क्योंकि वो अब अपनी साइंस की हेल्प से अपनी बात को दूसरों तक कन्वे कर सकती है, उनसे क्वेश्चन पुटअप कर सकती है, उनके आंसर ले सकती है, और एक दिन वो सारा भी कुछ ना कुछ बनकर ज़रूर दिखाएगी। ठीक है, तो वो प्लीज़ सिंबल की हेल्प से उनकी जो टीचिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। उनकी टीचर ने एक बोर्ड बनाया हुआ है स्कूल में, उसमें कम से कम 300 सिंबल्स हैं। सारा पर्सनली अपने लिए सिंबल चूज़ करती है, हर सिंबल के नीचे एक वर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरे सिंबल्स उनकी हेल्प करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। सारा की मदर भी एक बहुत अच्छी सपोर्टिव मदर है। उन्होंने किचन में सेम बोर्ड बनाया हुआ है और दोनों, सारा और उनकी मदर दोनों वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं साथ में। उन्होंने प्रिंट कर लिया है वर्ड हर सिंबल के नीचे, ताकि जो सिंबल्स को नहीं समझता उन्हें समझ आ जाए। टाइटल जो है सिंबल का है, सिंबल बोर्ड का, माई नेम इज़ सारा बेनेट एंड आई टॉक विद विलेज सिंबल। सी दिस इज़ अ सिंबल बोर्ड जिसमें कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, सारा का जो फेवरेट सिंबल है वो है नो और यस वाला। ठीक है, सारा हमेशा अपनी मम्मी से कहती रहती है कि मुझे स्टोरी सुनाइए, जब क्या हुआ था जब मैं छोटी बच्ची थी, तो बेबी थी और मैं क्यों नहीं चल सकती हूँ, ताकि ये उससे इसलिए कह रही ताकि उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करने में हेल्प मिले। मदर हमेशा उसे बताती रहती थी कि शायद उसकी बर्थ के टाइम पर या उससे पहले उसका माइंड का कुछ पोर्शन डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसका माइंड डेवलप नहीं हो पाया, और ये डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं था कि उसका एग्जैक्ट कॉज वो पता करें। हालांकि रिज़ल्ट ये था कि ब्रेन सही राइट सिग्नल उसकी मसल्स को नहीं दे पाया, उसकी वजह से वो अब सही से नहीं चल सकती और बात भी नहीं कर सकती। हालांकि सारा की मदर ने उन्हें बताया कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ भी सही से चल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सही से नहीं चल सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो बोल भी सकते हैं थोड़ा बहुत और कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सारा ही वांटेड टू लिसन द स्टोरी ऑफ हर बर्थ। बहुत कई बारी वो उसे अपनी स्टोरी सुननी होती थी और वो बार बार मम्मी से पूछा करती थी रीज़न वाई शी इज़ सो कम, और मम्मी उसे एक्सप्लेन करती थी कि दूसरे बेबी के कंपैरिजन में तुम थोड़ी अलग हो, बट यू आर इन एंजल डियर, तुम एक एंजल हो। ओके, फिर वो पूछती थी व्हाट अबाउट द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स ने कहा, उन्होंने बोला डॉक्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम्हें सेरेब्रल पैल्सी है एंड तुम बात नहीं कर पाओगी। उन्होंने बोला कि तुम शायद सीख भी ना पाओ कुछ। सारा वांटेड टू से अ डम डॉक्टर, सारा डॉक्टर को डम कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई सिंबल नहीं था डम का, तो उसने अपने बोर्ड पर भी लिखा और वो जानती थी कि मुझे डम कहना है। इसने बहुत ज़्यादा कोशिश करके उसने स्पेल किया डम, ये फर्स्ट वर्ड था जो उसके माउथ से निकला। ठीक है, फिर मम्मी कहती हैं कि ईजी नहीं है किसी के लिए एकदम से कंक्लूजन पे आ जाना। हो सकता है कि जो पीपल बोल नहीं सकते वो स्मार्ट हो, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते भी हैं लेकिन वो ब्राइट नहीं होते हैं। सारा पूछती है मम्मी आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो मम्मी कहती हैं सारा से आप तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन हम श्योर नहीं थे कि तुम किस तरह से और कैसे क्या करोगी, लेकिन हम ये चाहते थे कि तुम्हें कोई भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से हम दूर ना करें। जो भी मतलब आप करना चाहती हो हम चाहते हैं कि वो आप अच्छे से करो। सारा कहती है खुशी के साथ कि देखिए मम्मी अब मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, जो मैं करना चाहूँ अब मैं कर सकती हूँ। तो मम्मी कहती हैं हाँ डियर, जो वर्ड्स हैं हमेशा आपके माइंड में अलाइव होते हैं, लेकिन बस यही है कि आप वो किस तरह से उन्हें, हमें अपना मैसेज दूसरों तक पहुँचाना है, किस तरीके से हम उसे कन्वे करना है। सो स्टूडेंट, ये स्टोरी है अबाउट सारा बेनेट, जो हालांकि एक सेरेब्रल पैल्सी से सफ़र करती है, लेकिन वो फिर भी एक फ्रिस्की गर्ल है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जिसे चीज़ों को लर्न करने का शौक़ है, बहुत जल्दी कैचिंग पावर अच्छी है उसकी, और वो वो खुश है स्टिल, वो सोचती है कि एक ना एक दिन वो भी कुछ ना कुछ कर कर ज़रूर दिखाएगी। सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड रिमेन calm and we should not acknowledge defeat, however the typical situation in our life may be। जितनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारी लाइफ में क्यों ना हो जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ओके, थैंक यू। I'll send the exercise and question answers of this chapter on your WhatsApp.